So we are starting with second chapter, that is banking and insurance. Now this chapter has introductory part on in banking sector and insurance sector. So what is banking? First of all, we will study about banking. You tell me what do you mean by banking? It is a service industry first of all, who cannot trade in goods. Trade in goods means cannot buy and sell the goods. Okay, yes, but their primary function is to which they will have to perform is to accept deposit and grant loans. Right, that particular term is known as banking. So I hope you understand what do you mean by banking. You have already done. So it's just a definition that has been given. See, banking has been defined as accepting for the purpose of lending. You are accepting money from people, right? Why? Because you want to lend to somebody else. Okay, if you want to give somebody an amount of loan, then you should have money in your hand. No, only then you will be able to give somebody in the form of loan, right? So bank will never pay or give loan from their own pockets. No, they will accept deposits from one type of people and grant loan to another type of people. Yes, are you getting my example? So accepting for the purpose of lending and investment. So lending is their investment only, because whenever bank gives loan, they earn interest on that amount of loan, right? So that becomes my investment. On investment you earn interest. No, mute everybody, mute please. Vishal. Okay, so it is a type of investment that the bank does. Okay, and you deposit money from public, repayable on demand. Remember, whenever whenever you accept deposits on money, so you will have to pay them whenever they ask for. Such deposits are known as demand deposits, and some deposits are there which are known as time deposits. Okay, so the deposits are those deposits which are repayable on the demand by public. So whenever they ask their own money, it's their money. So whenever they ask you, you will have to pay them. And time deposit means they will have to wait until maturity period. So if the maturity period is there, like in fixed deposit, we have already done in chapter number 1, detailed description of the functions of commercial banks. And there we have done uh, time deposits and demand deposits. Okay, so time deposit example, fixed deposit is there. Okay, so in the fixed deposit you have, say for example, 1 year maturity period, 2 year maturity period. So as per this example, you will have to wait for either 1 year or 2 year, whichever maturity you have chosen, while taking the investment in fixed deposit, depositing the money in fixed deposit, right? So it is the case of time deposit. Same way, if you say saving deposit, it is the case of demand deposit. Yes, because in saving deposit there is no such type of, or you can say the concept of maturity period. You can withdraw at any point you want. Yes, 24 hours a day, 24 hours you can, I mean, operate through net banking, ATM, and then you have many other modes. ठीक है, वो भी हमने चैप्टर नंबर 1 में किया कि मोड्स क्या क्या होते हैं मनी ट्रांसफर के, या फिर हमको विड्रॉ भी करना है तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है एटीएम के थ्रू हम कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक बेशक 6 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन आप स्टिल अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक बंद है, आप स्टिल बैंक में पड़ी हुई, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज थ्रू एटीएम, right? Automatic Yes, teller ma'am. machine. That is the full form of ATM. Yes, that is
automatic teller machine, and we have done in chapter number 1 also. Okay, now when people demand, okay, from the bank, so they will have to pay them, no, bank will have to pay them. So what are the modes? See, they are giving you the modes, or demand, order, or otherwise, and withdrawable by check, draft, or otherwise. Otherwise means any other mode. चेक के थ्रू भी हम विड्रॉ कर सकते हैं अपना अमाउंट, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पहुंचा सकते हैं अमाउंट को, राइट। अदरवाइज मीन्स देयर आर मेनी सच मोड्स जिसमें मैं अमाउंट को विड्रॉ और ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। अब Yes, आप ma'am. अगर बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे ना, तो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आता है व्हाट इज बैंकिंग, तो हमने देख लिया व्हाट इज बैंकिंग, ठीक है, मीनिंग आता है बैंकिंग का। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट में आता है बैंकर। देर आर 4 कॉन्सेप्ट्स, ओके। फर्स्ट, बैंकिंग कंपनी, दैट मीन्स व्हाट, सॉरी बैंकिंग कंपनी नहीं, बैंकिंग मतलब बैंकिंग का मतलब क्या होता है। जब कोई बिजनेस बैंकिंग में होता है तो तो क्या एग्जैक्टली उसका रोल एंड फंक्शन क्या होता है, दैट इज नोन एज बैंकिंग, ओके। नेक्स्ट आता है आपका बैंकर, थर्ड होता है कस्टमर, एंड फोर्थ होता है बैंकिंग कंपनी। अब बैंकर कौन होता है? बैंकर इज द पर्सन हु परफॉर्म्स, Accept the यस, वो, या फिर शॉर्ट में बोलूँ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स को शॉर्ट में बोले तो बैंकिंग बैंकर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, या फिर द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, which is to accept deposits in the form of current account, saving deposits, fixed deposits, recurring deposits, yes, and grant loans. Grant loans to those who are in need of cash, right? And uh, people who deposit money can ask their money, and bank will have to issue them through checks, DD or otherwise. So ये आप लिख सकते हैं बैंकर के डेफिनेशन। बैंकर मीन्स द पर्सन हु परफॉर्म्स द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कस्टमर। नाउ हु इज द कस्टमर फॉर बैंक? दोज हु ओपन द अकाउंट विद द account the बैंक्स, bank. यस, दोज हु हैव देयर अकाउंट विद देयर बैंक्स। कस्टमर, customers those who have their bank accounts with banks perform at least a transaction of banking activity nature, that means कुछ तो बैंकिंग एक्टिविटी वो लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं बैंक के साथ, मतलब अकाउंट ओपन करना, सेविंग डिपॉजिट ओपन करना, करंट अकाउंट डिपॉजिट ओपन करना, राइट। एंड उसके बाद कुछ विड्रॉ करना, कुछ डिपॉजिट करते रहना, ये साइकिल चलता रहता है। समटाइम्स यू डिपॉजिट, समटाइम्स यू विड्रॉ। इन द टाइम्स ऑफ नीड आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अमाउंट, और जब आप अर्न करते जाते हैं हर महीने आप सेव करते जाते हैं बैंक अकाउंट में, तब आपको डिपॉजिट करना पड़ता है अमाउंट। आजकल तो देखो होता क्या है, जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, कॉलेज में जॉब करती हूँ झुंझुनवाला, ठीक है ना। अब जितनी सैलरी आ रही है वो सीधा बैंक अकाउंट से लिंक होती है, मतलब मुझे कैश मिलती नहीं। पहले कैसे होता था? पहले हमको कैश मिलती थी, ठीक है, पहले, बहुत पहले, ये बहुत साल पहले बात की, पहले की बात है। हम जब जब एम्प्लॉयज जॉब करते थे उन्हें कैश मिलती थी। सपोज आपकी सैलरी है 20,000, तो यू वुड गेट 20,000 इन कैश, एंड यू गो टू बैंक एंड डिपॉजिट देयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू सी what you want to do with this cash, okay, because it's your salary. But now everything has become connected to bank account, okay, so your money will be directly deposited to bank account. Are you getting my example? So आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे कस्टमर कौन है? कस्टमर मतलब जो अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के साथ और बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, डिपॉजिट विदड्रॉ, या फिर कभी लोन ले लिया बैंक से। अब कभी जरूरत भी पड़ी, तो अगर आपके पास, आपको कैश की जरूरत पड़ी, आपके पास उतनी कैश नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, तो आप क्या करते हो? Loan. यस, बैंक से लोन ले लेते हो, ठीक है। तो ये बैंकिंग एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शंस ही तो हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, ठीक है, बैंक के साथ।
और फोर्थ होता है बैंकिंग कंपनी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग कंपनी? Any company which transact the business. Yes, any company that transacts the business of banking. मतलब आप बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप कस्टमर नहीं है, आप बिजनेसमैन है. किस कौन से सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर. So you are involved in the transactions of, or you can say you are involved in the business of banking company, banking sector. ओके. आप लोगों से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट किसी बैंक के नाम पर. ओके. ग्रांट करते हैं लोन किसी बैंक के नाम पर, तो ये बिजनेस हो गया ना. क्यों? बिकॉज इफ यू आर गिविंग लोन इन द नेम ऑफ बैंक, यू विल अर्न द इंटरेस्ट, बट इन द नेम ऑफ बैंक. ओके. सो it's like a person who, or a company who transact the business of banking in India. ओके. अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7 क्या बोलता है? ये सेक्शन 7 पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में बता देती हूँ, उसके बाद हम उसके टेक्निकल वर्ड्स भी पढ़ लेंगे. ठीक है. सेक्शन 7 क्या बोलता है? अब ये बोलता है कोई भी बैंकिंग कंपनी, अभी अभी हमने समझा बैंकिंग कंपनी कौन होता है. ठीक है. अब कोई भी बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी है, कोई भी जो बैंकिंग कंपनी है, उसे अपने नाम के आगे पीछे बीच में कहीं पे भी, ओके. क्या बोला मैंने? उनके अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे मतलब पर्सन का नाम नहीं, कंपनी का नाम. जैसे एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, ये बैंकिंग कंपनी है. तो जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, उनको अपने नाम की या तो बिफोर देयर नेम, आफ्टर देयर नेम, और एनीवेयर इन द मिडिल ऑफ देयर नेम, आपको एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट बोला है मतलब एक बार से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं. अच्छा. एटलीस्ट एक बार ये वर्ड्स यूज करने, इनमें से कोई भी वर्ड्स, एनी ऑफ देम, बैंक, बैंकर, बैंकिंग, इनमें से कोई भी वर्ड कंपल्सरी बोला है, ऑप्शन नहीं दिया है, कंपल्सरी यूज करना पड़ेगा. अच्छा. और जो बैंकिंग कंपनीज नहीं है, जैसे रिलायंस कंपनी बैंक थोड़ी है, नहीं, रिलायंस कंपनी बैंक नहीं है. तो क्या है वो? कॉर्पोरेट फर्म. वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना. देखो, बैंकिंग भी कंपनी है, इंश्योरेंस भी कंपनी है, कॉर्पोरेट भी कंपनी है, लेकिन सबके रोल्स एंड ड्यूटीज अलग अलग होते हैं. बैंक कंपनी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और ग्रांट करती है लोन्स, ये इनका मेन फंक्शन होता है. इंश्योरेंस कंपनी का मेन फंक्शन क्या होता है? लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना और उनके रिस्क को अपने सर पे उठाना. आई बात समझ में? ये बैंक का काम नहीं होता, ये इंश्योरेंस का काम होता है. कॉर्पोरेट फर्म्स का क्या काम होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करके, गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करके खरीदना, बेचना, खरीदना, मैन्युफैक्चर करना, बेचना, रॉ मटेरियल खरीदना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना और गुड्स को बेचना. ये काम बैंक नहीं करती है, कॉर्पोरेट फर्म्स करते हैं. देखो, सब सारी कंपनीज हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग रोल्स एंड ड्यूटीज हैं. उनका मेन फंक्शन बताता है कि कौन सी कंपनी है. अच्छा, ये बैंकिंग कंपनी है. अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसके नाम के एक बार, एटलीस्ट नाम के कहीं भी एक बार, बैंक, बैंकर और बैंकिंग, ये वर्ड्स यूज होने चाहिए. कोई भी इन तीनों में से कोई भी वर्ड. अच्छा, जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, उन्हें प्रोहिबिट किया गया है. प्रोहिबिट का मतलब होता है उन्हें उन्हें अलाउ नहीं किया गया. यू आर नॉट अलाउड टू यूज सच वर्ड्स सच एज बैंक, बैंकर और बैंकिंग. वो अपने नाम के आगे पीछे एक बार भी बैंक, बैंकर, बैंकिंग वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. नहीं बोल रही हूँ. They will not be able to use. It is not allowed to them. It is prohibited for them. आई बात समझ में? ठीक है. कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई छोटा मोटा फर्म, वो लोग भी यूज नहीं कर सकते. अगर बैंकिंग बिजनेस है तो ही यूज कर सकते हैं. अब देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ. सपोज अभी एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, जो मैंने अभी बोला उसका एग्जाम्पल है. देखो, अब बैंकिंग कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी बैंक का नाम लो, आप बोलो, किसी भी बैंक का नाम बोलिए जो आपको HDFC बैंक. HDFC. अब देखो, अब मैंने जब HDFC बोला तो वो कॉर्पोरेट फर्म है,
लेकिन पीछे क्या बोला अभी अभी आपने? HDFC बैंक नाम यूज हुआ है ना, बैंक। जब HDFC बैंक का काम करना चाहती है ना तो बैंक नाम लगाना पड़ेगा। अच्छा, और कोई बैंक का नाम बताइए। IDFC. सॉरी, IDFC. IDFC, ओके। सो दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें ये तो नॉन बैंकिंग हो गया। ठीक है, ये कुछ नॉन बैंकिंग फर्म्स भी होते हैं, ये तो वो हो गया। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट बैंक्स बोल सकते हैं इन्हें, कि डेवलपमेंट बैंक के इधर डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और कोई एग्जांपल जिसमें बैंक डायरेक्टली दिखता है? ICICI बैंक, नहीं समझ में आ रही। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, वेरी गुड, एक्सिस बैंक। अब एक्सिस देखो, एक्सिस के पीछे नाम लगा हुआ है ना बैंक, वैसे SBI। अब दूसरी बैंक होती है SBI, सो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो बीच में नाम है बैंक। ICICI बैंक, वेरी गुड, ICICI बैंक, है ना। हमने ICICI का फुल फॉर्म भी पढ़ा है ऊपर फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी गुड सूरज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखो पहले फर्स्ट नाम किसका Bank आया? of बैंक। Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले नाम किसका आया? बैंक। इंडियन बैंक, पीछे नाम किसका आ रहा है? इंडियन, बैंक। यूनियन बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, वेरी गुड। सो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, जितनी बैंकिंग कंपनीज है उनके आगे नाम पीछे नाम में बैंक वर्ड यूज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, यस यस, TJSB बैंक, राजस्थानी जनता सहकारी बैंक, है ना। TJSB लिख दिया तो बैंक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी का फुल फॉर्म होता है बैंक। ठीक है, वेरी गुड, यस। अच्छा, अभी ना आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि ट्यूसडे को होमवर्क करके रखेंगे, और हम डिस्कस करेंगे पहले होमवर्क और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितनी सारी बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट। नहीं आता है तो गूगल सर्च करो, जितना याद है वो आप खुद से लिखो। ओके और मैम, कितनी सारी बैंक्स हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, ये सेकंड। और कितनी, थर्ड है आपका, कितनी सारी बैंक्स हैं जो जो फॉरेन बैंक्स हैं लेकिन उनका ब्रांच इंडिया में ओपन है। फॉरेन बैंक्स तो बहुत हैं, लेकिन जिनका ब्रांच इंडिया में ओपन किया हुआ है वो बोल रही हूँ। मतलब इन शॉर्ट उसको आप क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। लिखो, ये लिख दीजिए, होमवर्क क्या है आपका? लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट यस लेक्चर मैम, में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर ओके आपको मैम, पता है, देखो बहुत बहुत चीजें तो हमको पता है। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है? विच इज कोऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक होती है। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक हम कह सकते हैं, इसके दूसरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। और प्राइवेट सेक्टर कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट करती है, जिसे कौन ऑपरेट करता है? प्राइवेट प्राइवेट शेयर होल्डर्स, प्राइवेट ओनर्स होते हैं उसके। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? और यस फॉरेन बैंक्स आपको पता होना चाहिए, फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में ऑपरेट होती है जिनके ब्रांचेस इंडिया में ओपन होते हैं। तो आपको मुझे वो बताना है कि फॉरेन बैंक्स इंडिया में कौन कौन सी है। ठीक है, ओके मैम, ओके। अब देखो, रिलायंस कंपनी कॉर्पोरेट फर्म है, वो अपने आगे पीछे बैंक का नाम यूज नहीं कर सकती है। वो लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 7। ठीक है, अभी टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी बैंक थोड़ी है, वो तो कॉर्पोरेट फर्म है, कॉर्पोरेट कंपनी है। अब वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते हम टाटा बैंक, नहीं, इट्स अ टाटा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि सेक्शन 7 उनको प्रोहिबिट करता है, उनको अलाउ नहीं करता, आप यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? सेक्शन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस मैम,
यस, तो जब भी आप लोग शॉर्ट नोट आ सकता है, देखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन बैंक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 4 चीजें होती है। पहले बैंक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे बैंक का, कि बैंक होता क्या है। जो आपको ये सर्विस इंडस्ट्री होती है जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको? लोगों को, पीपल, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, है ना। बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो तो हमने बहुत सारी पढ़ी, बहुत सारी, फंड बेस्ड, फी बेस्ड, उसके अंडर में भी बहुत सारा पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हमने पहले से ही पढ़ी। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट्स बैंक के क्या होते हैं, ये शॉर्ट नोट लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर 4 कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो पहले बैंकिंग, फिर बैंकिंग के बाद बैंकर कौन होता है, कस्टमर कौन पर होता है, एंड बैंकिंग कंपनी। कस्टमर एंड बैंक। यस, कस्टमर एंड बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी, वेरी गुड। मतलब ये 4 कॉन्सेप्ट्स लिखने के बाद आपको सेक्शन 7 के बारे में बताना ओके मैम। है। ये एक टाइप होता है ओके मैम। आंसर लिखने का। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आज हम लोग फीचर्स करेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब ये तो सब आपको पता ही है, बहुत इजी चैप्टर है, ये सब आप पहले कर चुके हैं। यस फीचर्स मैम। ऑफ, हाँ, फीचर्स ऑफ बैंकिंग। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डीलिंग इन मनी। अब आप, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बैंक का क्या होता है, डीलिंग इन मनी, यानी कि लोगों से, कुछ लोगों से The आपने access to डिपॉजिट, deposit. यस, कुछ लोगों से आपने डिपॉजिट ले लिया, कुछ लोगों को लोन दे दिया। तो दोनों एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व है, मनी। 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 जब तक मनी नहीं होगा तब तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कैसे करेंगे। अच्छा, आपके पास मनी नहीं है, कैश नहीं है, फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप कैसे लोगों को लोन देंगे। जो आपका मेन बिजनेस है, आपका मेन बिजनेस है लोगों से एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, और किसी और को जिनको नीड है कैश की, उन्हें लोन के फॉर्म में फंड्स को, कैश को, कैपिटल को प्रोवाइड करना। ये करने के लिए आपको मनी में डील करना पड़ता है। डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होती है बैंक के फीचर्स का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन। अच्छा, सिर्फ आप प्राइमरी फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते हो। सिर्फ आजकल बैंक्स, देखो हर कोई साइड बिजनेस भी करता है आजकल, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। 20,000 कमा रहे हैं, नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलता है ना आजकल। तो बैंक्स भी सिर्फ एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और ग्रांट करना लोन, सिर्फ इतना काम नहीं करते। अब वो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आपको देते हैं, जिसे कहते हैं एजेंसी सर्विसेज। बैंक एज एक्ट एज एन एजेंट। वैरायटी ऑफ एजेंसी सर्विसेज आर गिवन बाय बैंक्स, जैसे लॉकर फैसिलिटी देना, टेली बैंकिंग की फैसिलिटीज देना, चेक क्लियरिंग, बिल्स कलेक्शन के लिए फैसिलिटीज देना। चेक क्लियरिंग करते हैं, बैंक आपको क्लियर करके देते हैं चेक्स। समझो आपके कस्टमर ने आपको चेक के फॉर्म में कैश दिया, चेक दिया है, कैश नहीं दिए, तो अब जब तक आप बैंक के पास जाएंगे नहीं, चेक उनको देंगे नहीं, ठीक है, रिसिप्ट भर के चेक नहीं देंगे, तब तक आपको वो एन कैश कैसे होके मिलेगा, कैश में कैसे कन्वर्ट होगा चेक। समझ आ रहा है आपको। तो चेक क्लियरिंग फैसिलिटीज उसको बोलते हैं। बिल्स कलेक्शन, आपको बिल्स कलेक्ट करके देते हैं। आपके कस्टमर के बिल्स है ना, आप टेंशन ना करें, हम कलेक्ट कर लेंगे, बैंक बोलती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बिल्स कलेक्शन फैसिलिटी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो उनको टाइम नहीं होता है जगह जगह जाकर अपने बिल्स को कलेक्ट करना, डेटर से बिल्स कलेक्ट करना, तो बैंक्स उनका काम उठा लेती है, उनके लिए लोग अपॉइंट करती है कि ये वाला बिजनेस है, इनके सारे बिल्स हमने कलेक्ट करने, तो ये ड्यूटी आपको दे दी। सेल्समैन अपॉइंट कर लेगी, सॉरी, एजेंट्स अपॉइंट कर लेगी, सेल्समैन नहीं, एजेंट्स। ये सर्विसेज को प्रोवाइड करती है बैंक्स। बहुत सारी सर्विसेज हैं अभी तो, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, है ना। ये सारी सर्विसेज आपको बैंक प्रोवाइड करती है। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे लोन, लोन आपको प्रोवाइड करके देती है। लोन मतलब ये एडिशनल फंक्शन है बैंक का। क्रिएट क्रेडिट मतलब यूनिक फीचर है ये बैंक का। अब इसमें क्या करती है, एवरी डिपॉजिट कैन क्रिएट क्रेडिट। जब आप डिपॉजिट करते हो ना, तो आप भी किसी, देखो समझो, एडिशनल मनी कैन बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। ये देखो, एडिशनल मनी कैन बी क्रिएटेड, आप एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट हम लोग आगे चल के लोन प्रोवाइड कर सकें।
मतलब आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से जितना अर्न करते जा रहे उसको भी तो आप लोन के फॉर्म में लोगों को दे सकते हो ना। सो इट इज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें आरबीआई की परमिशन लगती है और आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस डाली हुई है जो बैंक को वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है। कमर्शियल नेचर, जो बैंक का फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक और फीचर है कमर्शियल नेचर। कमर्शियल मतलब बैंक फ्री में काम नहीं करेगी आपका। विद द एम ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट्स बैंक परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। अब आपको बैंक अगर लोन देती तो फ्री में देती है क्या? नहीं, आपसे क्या चार्ज करती है? रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो थोड़े हाई होते हैं बैंक की। ठीक है। तो जिन नीडी लोगों को जरूरत होती है कैश की, उनको लोन देकर उनसे क्या अर्न करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इनकम। अब होता क्या है, समझो समझो पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब मेरी बैंक है तो बैंक ने क्या किया, ए से डिपॉजिट कलेक्ट किया और डिपॉजिट पे लिखा था 10% का इंटरेस्ट हम आपको देंगे ईयरली पर एनम। अब पर्सन बी है, अब वो पर्सन बी को लोन चाहिए तो मैंने उसे लोन दे दिया। मैं बैंक, हाँ ठीक है, कंसिडर मी एज अ बैंक। तो अब मैंने उसे बैंक, बीइंग अ बैंक मैंने उन्हें लोन दे दिया, सारा फाइनेंशियल स्टेटस चेक करके, घर के पेपर्स गिरवी लेकर, सब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो करके मैंने उन्हें लोन दे दिया। कितना? 1 लाख रुपए का। अच्छा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12%। मैंने इंटरेस्ट का लोन कितना, इंटरेस्ट कितना रखा लोन पे? 12%। ठीक है। तो अब देखो 12% मुझे मिस्टर बी से मिलेगा। मिस्टर बी जो पर्सन है उनसे मुझे, मैं बैंक हूँ, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। आई विल रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर बी। वाई? बिकॉज ही हैज बीन गिवन लोन। अब जब मैंने उन्हें लोन दिया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 12% का इंटरेस्ट मुझे मिला और उसी 12% में से जो इंटरेस्ट मैं अर्न करती हूँ, मेरे बोलने का मतलब है जो मैं इंटरेस्ट लोन्स पे अर्न करती हूँ, ठीक है, उसमें से ही, उसी प्रॉफिट्स में से, उसी इंटरेस्ट में से ही मैं कुछ इंटरेस्ट निकालूंगी। मतलब कुछ, मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से 10%, और वो मैं मिस्टर ए को पे करूंगी। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पर्सन का। ऐसे कस्टमर्स लाखों होते हैं बैंक के पास जो डिपॉजिट्स करते हैं, और ऐसे कस्टमर्स लाखों होते हैं जो लोन्स लेने आते हैं। तो मैं एक पर्सन का एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसने लोन लिया, और एक पर्सन का एग्जाम्पल दे रही हूँ जिसने डिपॉजिट करवाए बैंक में। तो 12% का इंटरेस्ट मुझे मिला। किससे मिला? जिसको मैंने लोन दिया था, मिस्टर बी। अब उसने मुझे 12% का इंटरेस्ट दिया, आई रिसीव्ड, दैट इज माई इनकम। अब इसी इनकम में से मैं 10% का इंटरेस्ट निकालूंगी और उस पर्सन को दूंगी जिसने मेरी कंपनी में, मेरे बैंक में डिपॉजिट्स ओपन किए थे। क्यों ओपन किया था डिपॉजिट? घर के लॉकर में भी तो रख सकते हैं कैश। क्यों ओपन किया था? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा ना उसके ऊपर। तो अब मैंने इंटरेस्ट पे करना है उनको। कितना? 10%। किसको? मिस्टर ए को, जिसने डिपॉजिट ओपन किया था। और फिक्स डिपॉजिट पकड़ लो, नाम, टाइप। तो फिक्स डिपॉजिट पे मैंने उसे प्रॉमिस किया था 12% इंटरेस्ट हम आपको देंगे, और सॉरी 10% हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, 10%। तो यहाँ से 12% आया और इसमें से मैंने 10% पे कर दिया। तो आप मुझे बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? यस, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो गए। 12% वॉज माई इनकम, 10% वॉज माई एक्सपेंस। तो अब क्या बचता है आपको? सेविंग। 2% बचता है मैम। नहीं, सेविंग्स नहीं बोलते हैं उसे, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट। यस मैम। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम, कमर्शियल नेचर। मतलब आप जब भी कोई बिजनेस करते हो ना, फ्री में नहीं करते हो, आप प्रॉफिट अर्न करने का मोटो रखते हो। with the aim of, with the motto of, with the objective of making the profit, you do and you perform the functions of business। तो बैंक्स के लिए भी सेम है। फ्री में तो बैंक काम करेगी नहीं, उससे भी तो प्रॉफिट बनाना है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया, 2% इसका प्रॉफिट था।
एक एक्टिविटी से ऐसे लाखों कस्टमर्स होते हैं जो लोन्स लेने आते हैं, और ऐसे लाखों कस्टमर्स होते हैं जो डिपॉजिट्स ओपन करते हैं। तो इस बीच में कमाता कौन है? बैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विड्रॉवल डिपॉजिट। विड्रॉवल डिपॉजिट मतलब आप ना, बैंक आपको वो भी ऑप्शंस देती है कि आप जो मेरे पास डिपॉजिट ओपन कर रहे हैं ना, उससे आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, एटीएम के थ्रू, कहीं भी किसी भी जरिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। अब विड्रॉ करने के लिए तो एक फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। कौन सी? चेकबुक की फैसिलिटी। चेकबुक नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? चेकबुक तो चाहिए ना आपको। ठीक है, द कस्टमर्स हैव ऑप्शन टू विड्रॉ मनी ईदर बाय चेक और विड्रॉवल स्लिप। देखो, विड्रॉवल स्लिप हम लोग भरते हैं एक, जिसमें सिर्फ मुझे वो स्लिप भरनी पड़ती है, उसमें चेक की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने वो अगर स्लिप भर दी और बैंक को दे दिया तो टोकन नंबर देते हैं। अब वो टोकन नंबर जब आपका आएगा उस हिसाब से आपको वेटिंग लिस्ट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो समझो आपका थर्ड नंबर है टोकन नंबर, तो थर्ड नंबर पे आपका कॉल किया जाएगा। टोकन नंबर 6 करके कॉल किया जाता है। समझो आपका टोकन नंबर 6 है, तो कॉल किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट कॉल यू विल रिसीव योर मनी। बैंक अकाउंट से विथड्रॉ करने के लिए ऐसे ये भी ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, डिमांड पे विथड्रॉ कर सकते हैं जब आपको चाहिए। जब आप डिमांड करेंगे तब विथड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी विथड्रॉन एट द मैच्योरिटी पीरियड। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा होता है जिसके लिए मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करना पड़ता है। उसके पहले भी कर सकते हैं पर आपका ही नुकसान है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना उतना जितना मिलना चाहिए था। ओके, एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको पता होना चाहिए चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। There are certain restrictions on the number of deposits also on the saving bank deposits. जब हम सेविंग डिपॉजिट्स ओपन करते हैं ना, तो ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसमें से। एक महीने में लिमिट होती है, हर एक बैंक की अपनी अपनी लिमिट होती है। कोई बैंक आपको 25,000 पर मंथ लिमिट देता है, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, कोई बैंक आपको 30,000 लिमिट भी देता है, कोई बैंक 20,000 लिमिट रखता है। ठीक है, और संदीप ने क्वेश्चन पूछा है कि कितना इंटरेस्ट मैक्सिमम बैंक्स देती है। इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक बेटा। अभी देखो, आईसीआईसीआई बैंक है, वो आपको सेविंग बैंक पे, यस बैंक है जो 6% भी दे सकती है, देती थी। आई मीन अभी तो उसने कम कर दिया, पेंडेमिक की वजह से कम हो गए सारे रेट्स। तो इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। 4% सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट चल रहा था, 3% भी देती है कोई कोई बैंक। तो वो बैंक पे डिपेंड होता है। इट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। सबका सेम नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट भी कोई बैंक देगी आपको 8.5%, कोई बैंक देगी 7%, कोई बैंक देगी 10%, है ना। तो वो भी बैंक, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। आई बात समझ में? आई होप इट्स क्लियर। Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. तो आज हमने क्या किया? Features and meaning of bank and concepts with features of banking company. Okay. Sorry. Okay, ma'am.